نیکسٹ آیا ہے آیا نمبر 5. پانچ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اب یہ چونکہ لام الف آ گیا ہے یہاں پر عبارت کے اندر ہے تو اس کو ملا کر پڑھنا ہے، یہاں ٹھہرانا نہیں ہے. مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. صبار فعلان کے وزن پر ہے، زور شدت اس میں، صبر وہ بھی صبر کرنے والا ہی، شکور شکور بولے تو شکر یہ کرنے کس پر والا. ہے؟ فعول کے وزن پر ہے. شکر شکر کے شاکر. مطلب نہیں ہے، لیکن فعول کے وزن میں آیا ہے تو اس کی کیفیت تھوڑا بدل جاتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں. لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، لقد کئی کو آتا ہے ایک کوئی بات کو، کوئی انسیڈنٹ کو یقینی بنانے کے لیے، ہاں ضرور ہم نے نازل کیا، ہاں ہم نے کیا، ایسا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ ہم نے بھیجا، موسیٰ کو بھی آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ. ان کا کوئی ہو سکتا ہے ڈفرینس ہوتا ہے، ڈفرینٹ مطلب میں آتا ہے، لیکن یہاں کے مطلب میں ہے. اخرج تو نکالے، قوم کا تو نکال، اخرج یہ کیا ہے؟ خرجا یخرجو کا یہ فعل امر ہے. اخرج تو نکال، یہاں سے نکالنا ہے. کہاں سے؟ فرعون کے ساتھ تھے، فرعون کی بانڈیڈ لیبر میں تھے، بانڈیج میں تھے، تو وہاں سے نکال کر، غلامی سے نکال کر، ان کو آزاد کر کے ان کو کیا کرنا تھا؟ تربیت کرنی تھی، تعلیم دینی تھی، ان کو امام بنانا تھا. ان کو وہی امام تھے پہلے، اب یہ ہے، اب ہماری قوم ہے، اب ہماری قوموں کو، ہماری قوم کو دیا ہے. کس کے ساتھ کب ہوا وہ؟ ہماری قوم کی تاج پوشی کب ہوئی؟ ہم کب امام بن گئے؟ امام. ہم امامت ہیں، ہمیں اللہ امامت کا درجہ دیا ہے، ہم ساری دنیا کے امام ہیں. نماز کی تاکید آنے کے بعد نہیں وہ ایک شعر ہے، یہ سنیے. سبق پھر لے ہدایت کا، اور کیا ہے؟ ہدایت کا اور کچھ، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق لے پھر، سبق یا پڑھ یا لے، شجاعت کا، صداقت کا، سبق لے پھر شجاعت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ مقصد ہے اللہ کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت. دنیا کی امامت، دنیا کا امام کسے بولتے؟ لیڈر، سامنے رہنے والا، سامنے کھڑنے والا، یعنی لیڈ کرنے والا. یہ ہمارا لیڈر کا مقام ہے. ہم کہاں پھنس گئے، کہاں ہیں ہم؟ لیڈر تو درکنار چھوڑو اس کو، تو صحیح طریقے سے ہم اسلام فالو کرنے والے بھی نہیں، لیڈر کہاں کے بنتے؟ ہمیں بنایا تھا اللہ کے لوگوں کی رہنمائی کرو، خود ہی بھٹک گئے، خود ہی پھنس گئے، شرک میں مبتلا ہو گئے، کفر میں چلے گئے، بدعات میں پھنس گئے. کہاں کی امامت؟ ہم سے چھین جا رہی ہے امامت، ہم ہی آ جا رہے ہیں دوسروں کے ہتھ کنڈے میں، دوسروں کے جکڑ میں، دوسرے امامت کر رہے ہیں ہم پر، دوسروں کا راج چل رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اخرج قومک، تو نکال اپنی قوم کو، من الظلمات، اندھیروں سے نکال. یعنی شرک میں پھنس گئے یہ لوگ کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے. اس پر تھے، شرک نہیں تھا ان کا شعار شرک نہیں تھا، توحید پرست تھے. لیکن جا کر فرعون میں جو پھنس گئے، وہ کہانی آپ کو معلوم ہے، اس کا بھی بڑا لمبا یہ ہے. جب یوسف علیہ السلام وہاں گئے، یوسف علیہ السلام وہاں اچھے اقتدار پر چلے گئے، بہت بڑا پوسٹ حاصل ہو گیا، تو اپنے بھائی بہن کو بھی بلا لیا، اپنے خاندان کو بھی بلا لیا. گئے سو وقت 67 تھے. اب جب موسیٰ علیہ السلام ان کو نکالتی، فرعون غرق ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام یہ قوم کو لے کر صحرا سینا میں جاتی ہیں، تو کتنے رہتی؟ کتنے لاکھ کی تعداد رہتی ہے وہ؟ 300 سال گزر گئے، 6 لاکھ یا 6 لاکھ کے قریب ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے. مردم شماری کیا ہے انہوں نے ایسا ہی نہیں بتایا ہے. اب جو سینسس چل رہا ہے نا، آپ کے گھر سینسس والے آ رہے ہیں نہیں؟ میرے گھر بھی آئے تھے. ہاں،
तो उन्होंने क्या लेती, मेंबर्स कितने हैं, घर कितना बड़ा है, आपके पास वो है क्या, ये है क्या, वो जो पूछती ना। अब वहां भी मूसा अलैहिस्सलाम ने ले जाने के बाद उनका सेंसस लिया। सेंसस को उर्दू में मर्दमशुमारी बोलते हैं। मर्दमशुमारी। उन्होंने सेंसस लिया, बाकायदा सेंसस लिया, औरतें कितने, बच्चे कितने, मर्द कितने, बूढ़े कितने, जवान कितने। वो इसलिए लिया कि एक तो जानना जरूरी था कि कितने हैं, तादाद कितनी है। और दूसरा, अगर वो अमालिया कौम थी ना, अमाला कौम थी फलस्तीन में, फलस्तीन बाद में फतह होने का हुक्म आना था, तो अल्लाह उनको हुक्म देने से पहले ये जानने के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम को ये बताने के लिए कि आपके पास जंगजू लोग, जंग के काबिल लोग कितने हैं। नौजवान ही करते ना जंग, बूढ़े तो नहीं जाते, औरतें भी नहीं जाती, बच्चे भी नहीं जाते। तो जंग के अहल कितने हैं वो बताने के लिए ये मर्दमशुमारी, और कई मकसद भी थे, इसके लिए मर्दमशुमारी की गई थी बाकायदा। तो निकले थे कितने, 6 लाख के निकले थे। तो गए थे इतने लोग, ये जुल्मात में थे, अंधेरों में थे, शिर्क में थे, क्योंकि वो जो ये बुत परस्त लोग थे, खुद को भी उन्हें अनल हक बोलता था ना फिरौन ने, माई हक हो, मेरी परस्तिश करो। और दूसरे भी थे उनके, नाइल रिवर को भी पूजा करते थे, और कई थे, बड़े वाहियात रसूम थे। लड़की को, कुंवारी लड़की को सजा संवार कर नील में डाल दिया करते थे। ये कब खत्म हुआ, ये वाहियात रस्म कब खत्म हुआ? हजरत उमर खत्ताब के जमाने में। उससे पहले ये चलता था। हजरत उमर खत्ताब ने कहा कि नहीं, ये रस्म मैं नहीं निभाऊंगा, अल्लाह के हुक्म से चलना है। तो एक लेटर लिखकर डाल दिया। एक लड़की को सजा संवार कर डालने के बजाय, वो जो डाला जाता था हर साल, नहीं तो तुगयानी आ जाती थी, सैलाब आ जाता था, पूरा गांव बह जाता था, ऐसा हुआ करता था। तो इस वास्ते ये लोग क्या करते, एक लड़की को, खूबसूरत लड़की को ढूंढ कर सजा संवार कर उसे अरूस, अरूसुल नील कहा करते थे। अरूस बोले तो दुल्हन, नील की दुल्हन बनाकर उसको डाल दिए, तो वो नहीं करता, वो तुगयानी नहीं आती। तो ये उनका ये था, अकीदा था, गलत अकीदा था। तो ये हजरत उमर खत्ताब को भी मालूम कराए कि ऐसा करना है। जब मिस्र फतह हो गया था, मिस्र फतह हो गया था, आपके इख्तिदार में आ गया था, इस्लामी हुकूमत में आ गया था वो, तो तब ये बताया गया कि ऐसा करना है। तो हजरत उमर खत्ताब ने, नहीं हरगिज नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो हुजूर डराया गया, नहीं ऐसा नहीं करे तो पूरा तुगयानी आ जाती है, पूरा गांव बह जाता है। तो हजरत उमर खत्ताब ने क्या किया, एक लेटर दरिया ये नील के नाम, ये इसमें आता है, खिलाफत राशिद है वो, खिलाफत राशिदा, उसमें एक लेटर बाकायदा उनका उनका अपने हाथ से लिखकर उन्होंने दरिया नील में डाला। उसमें क्या मजमून था, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चल रहा है तो अल्लाह के हुक्म से चल। अगर अल्लाह चाहता है, अल्लाह जो चाहता है वो तुगयान गाना चाहता है तो तुगयान नहीं, बराबर चल रहा है, अपने तलातुम के साथ, सही रफ्तार के साथ चल रहा है, तो अल्लाह के हुक्म से चल, तेरा नहीं चलेगा। ये जो शैतानी अकीदा है, ये हम नहीं फॉलो करेंगे, ये नहीं हो सकेगा, अब आइंदा ये नहीं होता। तू अल्लाह के हुक्म से चल, तेरा हुक्म नहीं चलेगा, हम नहीं मानेंगे, हम वाहियात रस्म रसूमात ऐसे नहीं करेंगे, तुझे पाबंद होना है अल्लाह के हुक्म का। तो ये लिखकर जो डाल दिया गया, फिर उस साल से बंद हो गया वो जो अकीदा था, गलत अकीदा था, एक लड़की को डालने का, कम सिन लड़की को, खूबसूरत लड़की को सजा संवार कर डाल दिया जाता था। तो वो जो गलत, वो क्या बोलते हैं उसे, ब्लाइंड बिलीफ, रिवाज, रिवाज। बहुत ही घिनौना तरीका, बहुत ही जाहिलाना रस्म जो था, वो खत्म हो गया वो। तो ये थे, ये सारे अकायद उनमें थे, उसके बाद भी थे, वो खत्म हो गया, उसके बाद भी दूसरे अकायद थे उनमें, और बुत परस्ती भी बहुत ज्यादा थी। ये लोग चूंकि, ये लोग हालांकि याकूब अलैहिस्सलाम के क्या है, ये असबात थी, असबात बोले तो फर्जंदान है याकूब अलैहिस्सलाम, बनी इसराइल, ये तौहीद परस्त थे। लेकिन इनके पास आ जाने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम का 300 साल का पीरियड गुजरा, 300 साल बहुत अच्छे रहे, बुला लिया, अच्छे जरखीज जमीना दिए गए, बहुत अच्छा रहे, पीर दादों की तरह रहे, सब इनको बहुत इज्जत भी करते थे कि पैगंबर के खानदान के ही इज्जत भी करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनमें भी ये जो इंडिपेंडेंस का एक ये था, उनका एक इमोशन जो था, इंडिपेंडेंस लेना, जैसा हमारे पास से 1857 में शुरू हुआ, नहीं, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल 1600 में ही शुरू हो गया, लेकिन वो गदर कब हुआ, 1857 में हुआ, बड़ा जबरदस्त हुआ, कितनी कुरेजियां हुई,
ये जो ये हैं ये अंग्रेज बहुत ही जारहाना मजालिम किए। हरियाणा का वाकया हुआ, फिर गदर हुआ, कितनी कोरेजियां हो गई। वहां क्या हुआ था, लोगों में एक इंडिपेंडेंस हासिल करने का, ये लोग दूसरे आकर हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, इनको निकालना, हमारी जगह खाली करना, हमारा रूल रहना बोल को एक वो जो उनमें पैदा हो गया जज्बा, उसके तहत वहां भी पैदा हो गया। कहाँ? मिस्र में भी पैदा हो गया। मिस्र में भी सबको ये बात वाजे हो गई कि ये लोग हैं। ये कौन थे? ये एक्सॉट किंग्स कहा जाता था इनको, एक्सॉट किंग्स, चरवाहा, चरवाहा बादशाह। ये अरबी उन नस्ल के थे, अरबी अरबी लोग थे, अरब के ममालिक से आए हुए थे। कभी कभी ऐसा होता था कि जहाँ अरबी उन नस्ल के इसमें एक ये बर्पा होता था, कभी कभी कोई बहुत जोर आवर ये शख्स जो उभर जाता उनकी नस्ल में, तो वो क्या करता, थोड़ा ज्यादा हिम्मत से काम लेता। कहीं दूसरी जगह जहाँ इंटरनल सिविल वॉर चलती रहती है, अपने अंदर कोई ये नहीं रहता ना, इत्तेफाक नहीं रहता, इत्तेहाद नहीं रहता, सुबह सुबह उन्हों उन्हों लड़ते रहती, तो वहां जाकर वहां देखकर छापा मारते ये लोग। छापा मारते, पहले भी छापा मारते थे। मार कर क्या करते, इनको कोई पैदावार नहीं थी, काश नहीं थी, तो वहां से लूट मार करके खाने पीने की चीजें, रसद की चीजें, अशिया इस्तेमाल की चीजें, ये सब लेकर आ जाते और अपनी जिंदगी गुसर बसर लूट मार करके ही किया करते थे। कई कई वाकयात हैं इसके, लूट मार करके किया करते थे। लेकिन एक वक्त क्या हुआ, एक शख्स ऐसा जोरावर, ऐसा आली हिम्मत, ऐसा जाहो जलाल वाला ये उभरा इसमें, अरबी उन नस्ल में, कि उसने जब देखा मिस्र में सूबाई हुकूमत है और इनमें इत्तेफाक नहीं है, तो वहां छापा मार कर लूट कर वापस आ जाने के बजाय अपनी कौम के जरी जो हिम्मत वाले रहती हैं, आली हिम्मत लोगों को लेकर जाकर वहां पर एस्टैब्लिश कर दिया, एस्टैब्लिश हो गया, अपनी कौम अपनी हुकूमत एस्टैब्लिश कर दिया। तो वहां से हुकूमत चली। कब तक चली? 300 साल चली। वही था, एग्जॉट किंग ही था जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद किया गया था। वहां के जो अजीज थे वो तो मिस्र के थे, लेकिन ये बादशाह जो था अरबी उन नस्ल का था। ये मैंने बताया है आपको। चूंकि वो अरबी उन नस्ल का था और यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अरबी उन नस्ल के थे, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, तो ये दोनों हम जिन्स थे। बताया है ना मैंने, ये दोनों हम जिन्स थे। इन्हों भी एक नस्ल के, उन्हों भी एक नस्ल के। वो जो मिस्र के लोग थे अजीज था, उन्हें अलग था, वो जुलेखा वो अलग थे। लेकिन ये जो बादशाह और ये थे, इन्हों एक ही थे। तो इस वास्ते इनको बहुत आला मुकाम दे दिया गया। इतना बादशाह इनको ट्रस्ट करने लग गया कि सब कुछ इनके हाथ में आ गया था। पूरा जमीन का, जितनी जमीन चाहो अपने खानदान को दे दो, जहां चाहो जो चाहो करो, सारा तसल्लुत, सारी जमीन में मिस्र में यूसुफ अलैहिस्सलाम का तसल्लुत था। तो वो कब तक चला? 300 साल चला। ये पीरजादों की तरह रहे, बहुत बड़े आलीशान जगह पर, जरखी जमीनें थी इनकी, अच्छी काश चलती थी, बहुत अय्याशी में, बहुत ऐश में रहे। बाद में क्या हुआ, एक 300-400 साल के दरमियान में इनमें भी एक इंडिपेंडेंस का जज्बा उभरा। कोई इनमें भी एक अकल वाला, एक हिम्मत वाला उभरा और लोगों को इश्कारने लगा कि देखो ये अरबी नस्ल के लोग हैं, हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, बाहर से आकर रूल कर रहे हैं। फिर उन्होंने, जैसा यहाँ कांग्रेस कायम कायम हुई, अबुल कलाम आजाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वो जो सियालकोट में थे, उन्होंने भी बहुत हिंदोसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, तराना हिंदी सब बोल बोल कर उकसाना शुरू करे। शायरों ने भी अपना काम किया, मजामिन निगार ने भी अपना काम किया, इश्क डालने का, उनको जोश दिलाने का कि अपनी आजादी हासिल करो, ये तुम्हें गुलामी में है। ये सारा सब कुछ वहां भी हुआ, मिस्र में भी हुआ। मिस्र में भी लोग उठे इनको निकालने के वास्ते, भाई इधर पर कोशिशें, लगातार कोशिशें की गई। आप भी नो मुश्किल में आ गए। ये जो याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद थी, ये जो जाकर बनी इसराइल वहां पर बहुत अच्छा रह रहे थे, 300 350 साल या 400 साल से, उन्होंने भी मुश्किल में आ गए। अब इनका वहां रहना दो घर हो गया, उनको निकलना जरूरी हो गया। तो कौन निकाले? अब वहां हालत क्या हो गई बोले तो, ये फिरौनी आ गए, फिरौनी तसल्लुत में आ गया, उन्हें बड़े इख्तिदार पर आ गया। फिरौन बाद में हुआ, ये फिरौन एक खानदान का नाम है, फिरौन किंग का नाम नहीं है, फिरौन खानदान का नाम, फराय ना बोल को खानदान का नाम। तो वहां एक ज्यादा जालिम आया, फिरौन का ही एक अहल
ज्यादा जालिम बादशाह आ गया जो ज्यादा जुल्म करने लगा, इनके बच्चों को, नरीना औलाद को मार देता था और औरतों को क्या करता था, युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहय्यून निसाअकुम, औरतों अच्छा को रखता, गुलाम बना लेता, उनसे क्या क्या काम लेता वल्लाहु आलम, बहुत खराब काम लेता, उनके साथ बहुत खराब रवादारी थी, बहुत बुरा सलूक था। तो वहां अल्लाह ने, हाँ यहाँ आई बात के अखरिज, अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत दे रहा है, चलो तुम लक़द अरसलना, अलबत्ता हमने भेजा मूसा अलैहिस्सलाम को भी आयातिना, अपनी निशानियों के साथ। क्या क्या निशानियां ले गए, 11 निशानियां थे, लेकिन फर्स्ट 2 निशानियां यदे बैजा और असा ही था, नहीं 2 ही थे। हाँ यदे बैजा जो हाथ अपने बगल में डालकर निकालते तो क्या होता था, वो गरेबान में डालकर निकालते तो चमकता हुआ, साफ चमकता हाँ हुआ दिखाई देता था। और दूसरा मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी थी लाठी जो बहुत कामों में अंजाम दी, जमीन पर डाल दिए तो वो क्या हो जाती, शाम से सांप होकर शाम बन जाए। जाने लग जाती। हाँ फिर उनके सामने भी ऐसा मौजूजा दिखाने के लिए कह रहा है अल्लाह, चलो अपनी निशानियों के साथ जाओ और निकालो। आखिरी 6 मका बॉन्डेड लेबर में आ गए हैं, उनकी हालत खराब हो गई है, हालांकि वो पैगंबर की औलाद है, बनी इसराइल है, उनको तो इमामत करना था, इमामत थे वो इमाम, एक जमाने में वही इमाम थे। अच्छा वो बात थी नहीं, कब हमें इमामत मिली, कब उन्होंने माजूल हुए, तहवील किबला के साथ। तहवील किबला, पहले किबला कौन सा था हमारा, बैतुल मक़दस था नहीं, जी अच्छा उसके बाद किबला क्या हुआ, काबतुल्लाह हो गया ना। काबतुल्लाह तो की तरफ। उसके साथ ही हमारा किबला चेंज होने के साथ ही हमारी इमामत भी कायम हो गई, हमारी ताजपोशी, गोया के ताजपोशी हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेताज बादशाह बन गए, ताजपोशी हो गई, हमें हुक्मरानी दे दी गई, हमारी हुक्मरानी साबित हो गई। तो यहाँ अखरिज, निकालो अपनी कौम को इस जुल्मात से, अंधेरों से। ये लोग वहां के परतों में, वहां के तौहीद परस्त लोग जाकर शिर्क में पड़ गए हैं, इनको इस शिर्क के अंधेरे से निकालो और इलन नूर, नूर की तरफ लाओ। और कैसा, वो जक्किर हम, जक्किर जिक्र करो, याद दहानी कराओ, याद दिलाओ उन्हें, भी अय्यामिल्लाह, अय्यामिल्लाह, ये एक तफसील तलब वर्ड है ये, अय्यामिल्लाह, आयातिल्लाह, आलाइल्लाह, आयत ये 3 हाँ चीजें हैं जो कुरान में बार बार आती है। मैं पहले वो 2 बयान कर देती हूँ, फिर बाद में अय्यामिल्लाह को हाँ आती हूँ। आलाइल्लाह क्या है, आलाइल्लाह सबसे बोलकर नहीं, बड़ा सबसे आला आला मकाम ये आला वो आला नहीं है, जी अलीफ आइन से आने वाला आला नहीं है ये, नहीं फिर अलीफ लाम, अलीफ के ऊपर भी जबर, लाम अलीफ, आला अच्छा इल्ला। अच्छा आला वो आला कैसा आता है, अलीफ आइन जबर हाँ आ, आला आला, हाँ आला आली, आली मकाम, वो हाँ अलग है वो। ये आला इल्ला क्या है बोले तो, फबिआई आला रब्बिकुमा तो तब भी कज़्ज़िबान, तुम्हारी पसंद वो देख लीजिए आपको मालूम हो जाएगा। हाँ जी जी इसका मतलब क्या है, आप किन किन नेमतों जी को अपनी नेमतें झुटलाओगे, छुटलाओगे। हाय इंसान तुम किन किन नेमतों को झुटलाओगे, अल्लाह की क्या क्या नेमतें हैं, पैदा किया, फिर क्या क्या हर चीज मुसख्खर कर दिया, हर चीज तुम्हारे पांव तले है, तुम अल्लाह के लिए हो, तुम्हें पैदा किया है, गया है अल्लाह के लिए, वमा खलक़तुल इंसा वल जिन्ना इल्ला लियअबुदून, लेकिन सब चीज तुम्हारे लिए है। आबाई, आप ये जो जमीनी मखलूक है, हवाई मखलूक है, सब कुछ, घोड़े सदा लेती तुम, हाथियां सदा लेती, शेर को सदा लेती, चीते को सदा लेती, कैसा वाशी जानवर, खूंखार जानवर है, वह मर क्या बोले तो पूरा इंसान हलाक हो जाता है, लेकिन उसे भी सदा लेती, एक लकड़ी से ही सदा लेती तुम। सबको मुसख्खर कर दिया, पहाड़ मुसख्खर कर दिए, झाड़ मुसख्खर कर दिए, क्या क्या चीज वो काम में आती है, लेकिन तुम्हारे वास्ते सारी कायनात मुसख्खर करके अल्लाह ने तुम्हें मखसूस कर लिया है अपने लिए, अपनी इबादत के लिए। तो यहाँ कहा जा रहा है भी अय्यामिल्ला, हाँ नहीं वो आला इल्ला की बात है नहीं, आला इल्ला बोले तो नेमतें, अल्लाह की नेमतें। तो अल्लाह अपनी नेमतों का जिक्र करके इंसान को एहसान मंदी का एहसास दिलाता है। एहसान, अल्लाह का एहसान मानो, तुम्हारे ऊपर कितनी नेमतें हैं, क्या क्या नेमतें हैं। पहले तो एक नेमत ये ही है कि तुम्हारी जो ये तख्लीक है कितनी अच्छी की है, देखने वाले हो, चलने वाले हो,
चल फिर सकते हो, आजादी है तुम्हें, किसी के ज़ैर नहीं हो, किसी के मोहताज नहीं हो, कोई तुम्हें खराबी नहीं है, लंगड़े नहीं, लुल्ले नहीं, अंधे नहीं, या दूसरे कोई तुम्हारे में अकल का फतूर नहीं है, सब कुछ दिया है। तो ये क्या है? ये नेमतें हैं। ये क्या है? आला इल्ला है, आला इल्ला। फिर दूसरा आगे चलो, अपनी तखलीक से आगे चलो, तो ये जो जमीन की काश्त करते हो वो सिखाया तुम्हें। जमीन की काश्त, वहां से कितना गल्ला उगाते हो, अल्लाह कैसे कैसे अनाज, क्या क्या तरीके के, क्या क्या अकसाम व अनवा के, अनवा व अकसाम के फल देता है तुम्हें, कैसी कैसी नेमतों से तुम्हें नवाजा है। अब आया है एक फल, कौन सा? ये बहुत ही मरगूब, सबका मरगूब, आम का सीजन आया है, सबका मरगूब है। वो सीजन में वो फल देता है, और सभी कारामद भी होती है, फायदा मंद भी होती है, इंसान की नशो नुमा के लिए भी कारामंद है, और वो खाने के लिए भी बहुत जायकादार है। ये सारी नेमतें हैं। और तुम्हें रहने के लिए घर दिया है, ठिकाना दिया है, मस्कन दिया है, सुकून की जगह दी है, रात बनाई, दिन बनाई, ये सब अल्लाह कहता है कि ये सब तुम्हारे ऊपर नेमतें हैं, सब अल्लाह इल्लाह है। रात नहीं बनाता तो क्या होता? दीवाना हो जाता। अगर एक रात नींद नहीं करे तो क्या होता है? बाई चांस आपको शब बेदारी का प्रॉब्लम हो गया, शब ख्वाबी नहीं हुई, नींद नहीं हुई पूरी, तो कैसा रहता है? दूसरे दिन आपको ना डाइजेशन बराबर होता, ना आप किसी चीज पर कंसंट्रेट कर सकते, ना आप सुकून से रह सकते। एक बेचैनी, एक इस्तकरारी कैफियत होती है, नहीं, एक बेचैनी की कैफियत हो जाती है, क्या कि कुछ गंवा लिए जैसा हो जाता है। तो ये रात जो बनाई, दिन जो बनाया, ये भी अल्लाह कहता है कि ये भी नेमतें, सारी नेमतें हैं। वो आला इल्ला है। मैं आला इल्ला समझाने के वास्ते बोल रही हूँ। एक आला इल्ला क्या हुआ? नेमतें। अब दूसरा क्या है? आला इल्ला है, आयात इल्ला है। दूसरा आयत आयात इल्ला। आयात क्या है? एक तो अनफुसी आयात नहीं, हमारी तकलीफ में है। मेरा दिल बनाया, जिगर बनाया, दिमाग बनाया, दिमाग की कुव्वत दिया, बोलने की कुव्वत दिया, सुनने की, समझने की, और कुछ और समझाने की भी कुव्वत दे दिया अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। जो भी कर सकने का हमें जो भी कैलिबर देता है, जो भी खूबियां देता है, उसे बराबर बरोए कर लाना है, उसका हक है। हम्म। अगर मैं कुछ बोल सकती हूँ तो अब मैं पहुंचा देना है अल्लाह के दीन को, अल्लाह के दीन के वास्ते काम करना है, कुरान की तालीम को पहुंचाने का काम करना है। अगर कोई दूसरा और कोई लिखने की कैपेसिटी है, या कोई घर घर जाकर कोई तालीम देने की कैपेसिटी है, तो वो भी करना। ये क्या है? ये हुकूक है अल्लाह के। ये जो भी अल्लाह दिया है ना, ये क्या है? आयातिल्ला, अनफुसी आयत आयात नहीं, हमारे में जो अंदर दिया है, कौन हमारे है में बातनी बातनी जो भी खुसूसियात दी हैं, ये आयातिल्ला, अनफुसी आयात भी हैं जो तख्लीकी हमारे अंदर हैं। उसको भी समझना है, हम अल्लाह की मारिफत जाना है, और हमारे में जो भी टैलेंट, जो भी कैलिबर, जो भी दिया है, उसको भी अल्लाह ही के लिए, अल्लाह के दीन की इशाअत के लिए, दीन की अलम बरदारी के लिए, इस्लाम को गलबा दिलाने के लिए काम करना है। वो ये अनफुसी आयात। और कौन सी आयत है? कौन ही नहीं नहीं आयत है। कौन है चांद, सूरज, जहाड़, पहाड़, समंदर, फट्टे मारता हुआ समंदर, कभी कभी सुस्त रफ्तारी के साथ जाता हुआ, फील के वजन पर जाता हुआ समंदर, और कभी फालान के वजन पर जाता हुआ, ठाटे मारता हुआ तला तुम, मौजें कैसा साहिल से टक्कर मार के वापस आती, चट्टान की तरह वापस आती। खड़ो आप तो बह जाती, आप संभाल नहीं सकते उसका, ये जो जोर रहता है पानी का, संभाल नहीं सकते। मेरा एक वक्त वाकया हुआ, मैं जाकर एक इसमें खड़ी थी, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही हूँ। वो ऐसा होता है कि एक खड़े रहती हैं, पानी कम ही रहता है, लेकिन जब मौज ज्यादा आ जाती है ना, तो वो मौज का फोर्स ऐसा रहता है कि वो नीचे, हमारे पाँव के नीचे जो रेत होती है ना, वो रेत जी निकल जाती है, वो रेत निकल जाती है, आपका बैलेंस तवाजुन खो जाता है। ऐसा ही कई जी बच्चे, मैं समझ गई, ये लोग जब 4 आदमी हलाक हो गए, एक को एक बचाते हुए चले गए ना। मैसूर में मैं हाँ, मैसूर में वो क्या हुआ है मालूम है? उन्होंने रेत जी निकाल दिए हैं। अब ये रेत क्या कर रही, साहिल से निकाल ले रही रेत, रेती मिल नहीं रही ना कंस्ट्रक्शन के लिए, तो बहुत सी जी जगह खड्डे बना दिए हैं, ये मालूम नहीं होता। तो वो रेत खाली होने की वजह से इन्हों बह बह को चले गए, हालांकि वो पानी कम ही दिखाई देता है। लेकिन वहां जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, वो मैं बोल रही हूँ, ऐसी मौजें आती कि वो फोर्स से रेत भी निकल कर चली जाती है, जमीन खाली दिखती है, ऐसा दिखता है कि खड्डा हो गया है हमारे पाँव तले। कौन तो वो गिर जाती, गिर गए तो ठीक है, फिर भी वहीं पर रहे तो, बह गए तो, मौज के इसमें बह गए तो बड़ा ही खतरनाक समंदर है ना, जो अल्लाह का कुदरत की निशानी है, बड़ी ही खतरनाक। ये सब क्या है? ये आयातिल्लाह है।
अनफुसी आयात हैं, कौनैनी आयात हैं, और कौन सी आयात हैं? आफाकी आयत। आफाकी आयत है, कौनैनी आयत को ही बोलते हैं। अच्छा, हाँ, कौनैनी आयत, अनफुसी आयत, आफाकी और भी एक है ना भी, आयत। आयत अनफुसिया, आयत कौनैनी, यही है, ये हम छोड़ दिए ना, यही है जी, अय्यामिल्ला। अय्याम, अच्छा, अय्यामिल्ला यही है। हाँ, अय्याम किसे बोल रहे हैं अल्लाह? वो दिन है। अय्याम किसकी जमा? यौम की जमा। यौम की यौम जमा। बोले तो दिन है, यौम की जमा अय्याम। अल्लाह वो अय्याम, तारीखी दिनों को बता रहा है, वो तारीखी दिनों की तरफ निशानदही कर रहा है, जब बड़ी बड़ी कौमें, आद की कौम, समूद की कौम, और कैसे बड़े बड़े, आद की कौम बहुत जबरदस्त थी। आप इसमें डालकर देखिए, ये गूगल सर्च जी, जी, कीजिए, आद क्या कौम थी बोलकर। ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम देकर हैं जो आज टेक्नोलॉजिकल, इतना हाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी नहीं इमेजिन कर सकते। वो तराशना, वो पहाड़ों का तराशना, उनके समर ड्वेलिंग्स अलग, उनके विंटर रिजॉर्ट्स अलग, समर रिजॉर्ट्स अलग, विंटर ड्वेलिंग्स अलग, उनके ये सब उनके ऐसे आसाइश में थे, इतनी आराइश में थे। और उनके खत भी बहुत ज्यादा हुआ करते थे, बहुत ऊंचे लंबे, बहुत डल डल के चलते, तो ऐसा मिनटों में सफर तय कर लेते थे, बड़ा बड़े फासिले मिनटों में तय कर लेते थे। तो वो उतनी बड़ी कौम को अल्लाह ने जमीन बोझ कर दिया, आने वाहिद में खत्म कर दिया। आद की, समूद की, और दूसरे भी, नूह अलैहिस्सलाम की कौम में, सबको जो खत्म कर दिया, उसको भी अल्लाह अय्यामिल्लाह बोलता है। यानी वो यादगार दिना, वो यादगार हिस्टोरिक डेज, जब इतनी बड़ी बड़ी कौमों को अल्लाह ने तबाह व बर्बाद कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया, मिटा दिया सफाई हस्ती से, वो भी अय्यामिल्लाह है। और जिनको उरूज पर चढ़ाया, खुशहाली दी, आने वाहिद में खुशहाली दी, बहुत ऊंचा मुकाम दे दिया, वो भी अय्यामिल्लाह। यानी अच्छे अच्छे उरूज पर चढ़ाने के दिन भी अय्यामिल्लाह, और एकदम निस्तो नाबूद करना, सफाई हस्ती से मिटाना, आने वाहिद में खत्म कर देना, वो भी अय्यामिल्लाह। अय्याम। हम समझ गए नहीं अय्यामिल्लाह क्या है? जी, 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 हाँ, तो ये जो है मिनज़्ज़ुलुमाती इलन नूर, नूर की तरफ ले आओ उन्हें। कैसा ले आओ? बयान जिक्री, करो, बयान करो उन्हें। क्या बयान करो? अय्यामिल्लाह बयान करो। उन लोगों के वाकयात, आद के, समूद के, इन लोगों के वाकयात बयान करो। बयान करके उनको नसीहत आमीज लेक्चर दो उनको, ताकि उन्होंने मान जाए, ईमान पर आ जाए। वरना अल्लाह ऐसा निस्बत करता है, जैसे कौम आद को करया, जैसे कौम हूद को करया, जैसे कौम लूत को करया। ये बताओ उनको, अगर ये भी इसी रविश पर रहे, मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहा है अल्लाह, तुम्हारी कौम को भी ये सारा जिक्र करो। अगर ये भी इसी रविश पर रहे, जैसा लूत अलैहिस्सलाम की हुई, जैसा आद अलैहिस्सलाम के लोग थे, वैसा अगर इनकी भी रविश रही, तो ये भी उसी नतायज के इसमें आ जाएंगे, वही नतीजा इनका भी होगा, अल्लाह इनको भी बर्बाद कर देगा। तो जक्किर हम, याद दिलाओ उन्हें, नसीहत करो उनको, भी अय्यामिल्लाह, ये सारे वाकयात इनको सुना कर न एक नसीहत दो इनको, अल्लाह के दिन, अय्यामिल्लाह अल्लाह के दिन। अल्लाह खुद अपनी तरफ मंसूब करता है कि ये जो बड़े बड़े लोगों को खत्म कर दिया, ये भी मेरे दिन है, ये यादगार दिन है, ये अपनी तरफ मंसूब करता है। और जिन जिन अक़वाम को उरूज पर ला लिया, वो भी अल्लाह अपनी तरफ मंसूब करता है, अल्लाह के दिन है। इन्ना फी ज़ालिका, यकीनन इन आयात में, इन वाक़ियात में, इन अय्यामिल्लाह में, लायातिल लिकुल्ली सब्बारिन शकूर शकूर। तो इसमें क्या है? ला आयात, ये ला लामे ताकीद है, पहला लाम। आयात अलबत्ता निशानियां हैं जरूर, लिकुल्ली सब के लिए, किसके लिए? हर सबर करने वाले के लिए और शुक्र करने वाले के लिए। ये सब्बार जो है फालान के वजन पर है, और शकूर जो है फऊल के वजन पर है। फऊल का वजन क्या है? दायमी तौर पर एक तलातुम के साथ बहने वाला। सब्बार अगर फालान के वजन पर आया, तो फालान के वजन पर रहमान भी आता है। रहमान, रहमान कैसा है? रहमान वर्ड एकदम शिद्दत,
हाँ, शिद्दत बयान यहाँ है, एकदम ठाटे मारता हुआ समंदर, अल्लाह की रहमत का ठाटे मारता हुआ समंदर। अल्लाह रहमान है बोले तो बहुत ज्यादा रहम करने वाला। रहमत का वो मुझे एक्सप्लेनेशन के लिए वर्ड्स ही नहीं मिलते। रहमान जो वर्ड है ना, ये जो फालान पर आता है, सब्बार भी आता है, गफ्फार भी आता है, सत्तार भी आता है। शान सत्तारी कैसी है अल्लाह की, शान गफ्फारी कैसी है अल्लाह की। हाँ, कैसा बख्श देता है। ये कोई अदा पसंद आ गई, एक वो जो थी, वो जो क्या थी, वो प्रोस्टिट्यूट जैसा, लेकिन उन्होंने क्या करी, एक कुत्ते को है ना अपना चप्पल डालकर पानी पिला दी। पानी पी। अल्लाह को इतनी अदा पसंद आ गई कि उसकी भी बख्शिश हो गई। बख्शने पे आए तो अल्लाह रहमान अपनी रहमत का ऐसा निछावर कर देता है, अपनी रहमत से कैसा बख्श दे सकता है। और अगर तो उसको सजा देने पर तो उसका इकाब भी बहुत जबरदस्त है। तो ये है ना, फालान के वजन पर है सब्बार, बहुत ज्यादा सबर करने वाला, हर हालत में सबर करने वाला, आपे से बाहर नहीं होने वाला। सबर किसे बोलते हैं? सबर हमेशा हर कोई करता है, लेकिन कई सिचुएशंस ऐसे आती हैं जब इंसान आपे से बाहर हो जाता है। आपे से बाहर नहीं होना, आपे से बाहर होना क्या, गुस्सा करना। गुस्सा इतना ज्यादा के गुस्सा। अपने आप में नहीं रहता, अपने होश में नहीं रहता, क्या जबान से कह रहा है, क्या उसके अल्फाज निकल रही, होश नहीं रहता उसे। कभी कभी ऐसा बक देती। अब मियां बीवी की लड़ाई भी जो होती है ना, आपे से बाहर हुए तो जो तलाक का नौबत आती है सो। आ जाती है। हाँ, इन्हें भी जो बोलता है जबान से ऐसे अल्फाज निकल जाती हैं कि जो बाद में समझौता नहीं हो सकता। लड़ाई लड़े तो भी, लड़ती हर कोई लड़ती है, मियां बीवी में भी आता है, लेकिन इतनी हद में रहना के फिर समझौता हो सकता। आपे से बाहर नहीं होना, किसी लड़ाई में भी आपे से बाहर नहीं होना, बहन भाई की हो या रिश्तेदारों में हो या फ्रेंड सर्कल में हो, अपना होश नहीं खोलेना, बातचीत में ऐसे अल्फाज नहीं आ जाना कि उसके दिमाग को टकराते रहना, उसके दिमाग को ऐसा कह दिया उन्हें, मैं फिर कैसा बात करूं, कैसा उसके साथ रिश्ता जोड़ूं, कैसा मैं जाऊं उसके पास से, ऐसा नहीं होना है। कुछ समझौता करना है या कोई बात है जिस पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो एक बयाना रवैया इख्तियार करना, आपे से बाहर नहीं होना। आपे से बाहर होने को क्या बोलती है? ये सबर में नहीं आता है, सबर करने वालों में नहीं आता। सबर करना बोले तो अपने आप में रहना, सोच समझ कर बात करना, ऐसी बात होना कि अगर कोई झगड़ा हो भी रहा है तो इतने एक्सटेंड को नहीं जाना कि फिर समझौता, फिर ये नहीं हो सके, मिलाप नहीं हो सके, एकदम खत्म करने के इसमें नहीं जाना। खास तौर से मियां बीवी, मियां बीवी को लड़ाता है शैतान, इतनी हद तक चले जाती तो मई में आ जाको कट। बच्चों का भी ख्याल नहीं करते, बच्चा का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे भी रहते, ये हद को आ जाती। तो वो क्या होता है, वो उनको सब्र नहीं है, आपे से बाहर शैतान करता है। शैतान से पहले पनाह मांग लेना। अल्लाह बोला गुस्सा आया तो पहले पानी पियो, पानी पी लो, औजुबिल्ला बिस्मिल्लाह पढ़ना बहुत अच्छी बात है, शैतान भाग जाता है। उसके बाद पोजीशन बदल लो, खड़े ही तो बैठ जाओ, बैठ जाए तो बैठ गए तो लेट जाओ, पोजीशन बदल लो, उसमें भी है ना बहुत सा गुस्सा ठंडा हो जाता है। लिकुल्ली सब्बारिन शकूर, सब्बार फालान के वजन पर है और शकूर फऊल के वजन पर है। ये दोनों की भी खुसूसियात है। ये जो वजन है ना, ये यूनिक टू अरेबिक लैंग्वेज, दूसरे में नहीं है, ये दूसरे लैंग्वेजेस में नहीं है। उस वास्ते मैं बोली कि ये समझाने के वास्ते जबान बहुत रिच रहना और हमारा कमांड लैंग्वेज पर बहुत रहना, हमारी वैकेबुलरी बड़ी स्ट्रांग रहना, वरना वी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, अल्फाज नहीं मिलते, ब्या ब्या करने लग जाती, अल्फाज नहीं मिलते। ये जो एक जज्बात होता है, जज्बाती तलातुम होता है, इससे मुतहम्मिल होने के वास्ते अज़बात का ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं, अल्फाज का जखीरा बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी हम अरबी का ट्रांसलेशन में कुछ उसका हक अदा कर सकते हैं, वरना हक अदा नहीं होता। अल्लाह कह रहा है, हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाओ, जो दिन दिखाए हैं उसका हेल्प लेकर। यानी ये कुरानी लफ्ज अय्यामिल्लाह है, जिसके लफ्जी माने हैं अल्लाह के दिन, लेकिन मुहावरे में इससे मुराद वो दिन हैं जिनमें अल्लाह ताला ने खास खास और अहम अहम वाक़ियात दिखाए हैं। मसलन नाफरमान कौमों पर अजाब का नाजिल होना और फर्मा बरदार कौमों को दुश्मनों के मुकाबले में कामयाबी अता करना।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुआ, फतेह मक्का भी हुआ, वो भी एक अय्यामिल्लाह है। ये भी अल्लाह का शुक्र है जो दुश्मनों पर फौज अजीम फतेह मुबीन दे दिया। कई वाक़ियात ऐसे हैं जिसको अल्लाह अय्यामिल्लाह कह रहा है। मसलन नाफरमान कौमों पर अजाब का नाजिल होना और फरमा बरदारों को दुश्मनों के चुंगल से कामयाबी के साथ निकाल लाना और उनको फतह याबी नसीब करना। तो आयत का मतलब ये है कि इन खास खास वाक़ियात का हवाला देकर अपनी कौम को नसीहत कीजिए कि वो अल्लाह ताला की फरमा बरदारी इख्तियार करें। किसको बोल रहा है अल्लाह? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम को। आया नंबर 5 का हो गया खुलासा।